Hello students, I hope you all are following all the precautions that is required during this pandemic. So be safe, be at home, and let's start today's class. As we have discussed status of women in the ancient times, we have discussed the Vedic period, the Quranic or Brahmanical medieval periods, and along with that, we were just discussing the present status of women, or in general, the issues and status of women in contemporary society. And we can say that there's more representation of women in parliament, Vidhan Sabhas, Panchayat, Nagar Nigams. Even if we see the literacy level, it has improved. The number of health facilities which were not there. So in that, there's improvement. Women are working, but still, when we go to more interior areas, rural areas, or even tribal areas, then we find that lots of development still lags behind and is required. Most of the women, and if we talk about the workforce, most of the women, majority of the women are working in unorganized sectors and not in organized sectors. So that is something very important that needs to be improved, and policies should be made to bring improvement in that. And the middle class women who are working in organized sectors also, it's generally teachers, nurses, clerks, stenographers, telephone operators, and other such jobs, and we don't find them to the higher levels. So that is the status of women, if we see as overall perspective. So the number of issues and concerns that still need attention and lots of effort to reduce this disparity or discrimination that prevails in both the genders. In this paper, we'll be discussing a number of terms that in the previous class also, as we were discussing the definition of women's studies objectives, certain terms come, for example, gender, mainstreaming, and gender discrimination, gender identity. So in this class, we'll be just discussing with you all the terms, patriarchy, so that you're familiar with this term, and when we are taking the class, doing discussions, you are not perplexed with the terms. So in this particular class, let us discuss all the terms that would be coming along in this paper. So first of all, we'll start with the word itself, that is sex and gender. So what is the main difference between sex and gender that we need to understand, as this paper's requirement is also. So when I ask you what is your sex, certain students answered, ma'am, male, female, this is what we tell. And if I ask gender, then also the same reply comes. And many of you were told that, ma'am, we don't find any difference. It's a sort of synonym. So let's try to understand that what is the difference. Basically, sex is a biological construct. That depends on the reproductive organs with which we identify a person as male or female. And when it comes to gender, gender refers to a social construct. That is perception, ideas, beliefs, and practices of what is to be female or male as per a society or culture. तो समाज में जब हम कैटेगराइज करते हैं एक पर्सन को मेल या फीमेल की तरह, और उसका आधार जो है वो सामाजिक होता है, सामाजिक धारणाएं होती हैं कि औरत या लड़की की ये क्वालिटीज हैं, या इस तरह का स्वभाव जो दिखाए, और इस तरह के एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी जिनसे रखे वो फीमेल हैं, और इस तरह के स्वभाव वाले या एक्सपेक्टेशंस या भूमिका को निभाने वाले मेल हैं. तो ये सामाजिक धारणा जब आती है तो उसे हम जेंडर कहते हैं. Now moving on to gender, एक और definition देख लेते हैं. The socio-cultural phenomena of the division of people into various categories such as male and female, with each having associated clothing, roles, stereotypes, etc. Now coming to the word gender identity. So, gender is the socio-cultural phenomena of the division of people into various categories such as male and female, with each having associated clothing, roles, stereotypes. So when society puts certain characteristics, clothing, roles,
and stereotype it with a particular gender, then it is taken as gender. तो समाज जब ये निर्धारित कर देता है कि ये जो लोग हैं ये इस तरह के कपड़े पहनेंगे, ये इनकी भूमिका रहेगी, और वो स्टिक कर देते हैं कि औरत के जो थॉट प्रोसेस है या उसकी जो भूमिका है, उससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की, वो ये पर्टिकुलर हैं और आदमी के लिए दूसरी हैं, और ये हम बहुत स्ट्रिक्टली जब कर देते हैं तो उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, और जेंडर हम सोशल कंस्ट्रक्ट से समझते हैं। और इसके ऑपोजिट सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या नेचर के आधार पर हम जब सेग्रीगेट करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो जेंडर कंस्ट्रक्ट है वो हमारी समाज का, हमारी सोसाइटी का ही बनाया हुआ है, तो इसीलिए डिफर भी करता है और इस पे हम काम कर सकते हैं, इसे हम सुधार सकते हैं। Now coming to the other word, gender identity. Gender identity is the personal sense of one's own gender, a person's internal sense of being male, female, sub-combination of male and female, and neither male or female. Gender identity can correlate with assigned sex at birth or can differ from it. All societies have a set of gender categories that can serve as the basis of formation of a person, social identity, and relation to other members of the society. तो एक व्यक्ति की पहचान अपने लिए कि वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या जो और कैटेगरीज हैं जेंडर की, उसे हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। इसे और अच्छे से समझने से पहले हम जेंडर आइडेंटिटी पे जाएं, इससे पहले हमें आइडेंटिटी को समझना जरूरी है। तो चलिए हम पहले आइडेंटिटी पे एक डिस्कशन कर लेते हैं और समझते हैं कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता कैसे है। और एक बार हम आइडेंटिटी फॉर्मेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम जेंडर आइडेंटिटी को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। So this, as per identity is considered, there are basically two components of identity. The first one is exploration and the other one is commitment. So what do we mean by that? Exploration का मतलब है जब हम कोई चीज खोजते हैं, कोई चीज जानने की कोशिश करते हैं, और commitment है हमारी प्रतिबद्धता किसी भी चीज को लेकर। तो आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, पहचान की अगर हम बात करें, तो एक इन्फेंट जब पैदा होता है, बॉर्न होता है, और जैसे ही क्रैडल में आता है और अपने हाथ पैरों को देखना शुरू करता है, अपने व्यक्तित्व को महसूस करना शुरू करता है कि ये सामने एनवायरनमेंट है और मैं एक बीइंग हूँ, तो ये जो फीलिंग है इसी के साथ आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। So as the baby is born and is lying in a cradle and start feeling her hand, his body or her body, and start feeling as a being separate from the environment, the process of identity formation starts. And the focus of this identity development or formation is the adolescence period, when you start questioning yourself as who you are. Children start seeing themselves, separating themselves from parents. तो अक्सर जो बच्चे हैं वो ये सवाल खुद से करते हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो टीनेजर्स हैं, कि हम कौन हैं, और अगर हम अपने माता पिता की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उससे खुद को अलग करके देखें तो क्या स्थान है समाज में हमारा। तो इस तरह का जो एक पहचान के प्रति खोज है वो हम बहुत तीव्र स्थिति में पाते हैं जो एडोलेसेंस किशोर अवस्था है। तो इस एक्सप्लोरेशन के साथ जो बच्चा है वो अपने वैल्यू सिस्टम्स, अपने मे बी जो लाइफ में उसको जिस तरह का जीवन जीना है, उसके लिए जो भी मूल्य उसको निर्धारित करने हैं, उसकी खोज में उसकी खोज शुरू करता है। तो उस खोज में उसके बाद जिन चीज़ों पर वो ये प्रतिबद्ध होता है कि हाँ ये मेरे जीवन के लिए सही होगा या मुझे सही लगता है, उसको वो कमिट करता है, डिसाइड करता है कि अपने जीवन को उसी के आधार पर जिएगा। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन के, एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट। आइडेंटिटी को हम तीन प्रकार में देख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल, नॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल और परमिसिव आइडेंटिटी स्टाइल। तो कुछ टीनेजर्स ऐसे हैं जो अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, चाहे वो वैल्यू सिस्टम हो, मे बी सब्जेक्ट्स हमें क्या लेने हैं, मान लीजिए 10th है या 11th 12th है तो हमें साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, मैथ्स लेना है, बायोलॉजी लेनी है, तो वो उन सब्जेक्ट्स को खोजते हैं कि मैं किस में बेहतर हूँ, अच्छा हूँ, या उसका स्कोप कैसा होगा। तो इसकी खोज वो करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और फिर जो उन्हें ठीक लगता है वो कमिटमेंट वो करते हैं कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ूंगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हर चीज़ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर एक्सप्लोरेशन होता है, फिर कमिटमेंट होता है। तो जो इस प्रक्रिया को के द्वारा अपने मूल्य और अपने जो वैल्यू सिस्टम है उसको निर्धारित करता है, उसे हम इंफॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल का कहते हैं। दूसरी जो स्टाइल हम पाते हैं वो है नॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल।
इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सप्लोरेशन है या खोज की भावना है वो एब्सेंट होती है, उसकी कमी होती है, वो नहीं मिलती। तो जो एडोलेसेंस हैं वो क्या करते हैं कि सीधे कमिटमेंट करते हैं, और उस कमिटमेंट का आधार क्या होता है, उन्हें क्या करना है, उनके जीवन के क्या मूल्य होंगे, क्या क्या चीज़ें वो अपनाएंगे। वो जो उनसे बड़े हैं, मान लीजिए माता पिता हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, तो वो जो उन्हें बता देते हैं उसको वो एज इट इज मान लेते हैं और उसका पालन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए देखिए नाम ही है नॉर्मेटिव। नॉर्म से मतलब रूल से है, रेगुलेशन से है। तो हमारे माता पिता जो हमारे लिए मूल्य निर्धारित कर दें, जो रूल्स बना दें, उसको हम डायरेक्टली अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके लिए कमिटमेंट कर लेते हैं। खुद का कोई एक्सप्लोरेशन हम नहीं करते, तो इसे हम नॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल कहते हैं। जो रिसर्चेस हैं वो शो करती हैं कि काफ़ी सारी जो रिसर्चेस उसमें आया है कि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो काफ़ी कुछ नॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल, जो उनकी पेरेंटिंग है वो बच्चों को नॉर्मेटिव आइडेंटिटी स्टाइल की तरफ लेकर जाती है। जो थर्ड है दैट इज परमिसिव आइडेंटिटी स्टाइल। इसमें जो है एडोलेसेंस, वो ना तो एक्सप्लोर करते हैं, ना ही तो खोजने की जो है उनके अंदर प्रवृत्ति रहती है, ना वो पेन उठाते हैं कि वो इतना संघर्ष करें खोजें, और ना ही उनके अंदर कोई कमिटमेंट होता है, ना ही उसके प्रति कोई प्रतिबद्धता होती है। इसीलिए हम परमिसिव आइडेंटिटी स्टाइल कहते हैं। सॉरी, इट्स नॉट परमिसिव, इट इज डिफ्यूजिव diffusion identity style. So the third one is diffusion identity style. So these adolescents neither explore nor they do any commitment. So they are in a form of confusion that what they have to do in their life. उन्हें जीवन में क्या करना है, क्या मूल्य है, किन का पालन उन्हें करना है, वो उन्हें नहीं पता होता। ठीक, हम ऑफन काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। जब आप सब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए थे, होम साइंस सब्जेक्ट के लिए, इवन अदर सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी में जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे बड़े ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। व्हेन वी आर गिविंग देम सब्जेक्ट्स, दे आर चूजिंग देयर स्ट्रीम्स, दे आर लाइक वेरी मच we can say aware that they have to study this subject. These are the pros and cons of this subject, and they discuss with us in the counseling sessions, and then they choose their subjects. There are some students who would be coming with their parents, मम्मी पापा के साथ आते हैं और वो बताते हैं कि ये सब्जेक्ट इनको दे दीजिए, इन्हें पढ़ना है। या बच्चे से भी जब हम बात करते हैं तो the thing that they tell us is that because papa ne kaha hai ya mummy ne kaha hai, I want to study this. So then we discuss with them, seeing their earlier results also, कि उन्हें किस में इंटरेस्ट है या कौन सी जो उनकी स्ट्रीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्सेट्रा। एंड देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑल्सो विच इज नॉट नोइंग एनीथिंग। आप कुछ दे दीजिए, जो हमें मिल जाए हम पढ़ लेंगे, उन्हें नहीं पता कुछ। सो ये तीनों तरह की हमें जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो देखने को मिलती है। खैर, जैसे ये एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट हम अपने एक जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन में करते हैं, अब हम जेंडर आइडेंटिटी पे आते हैं। ऐसे ही सोशलाइजेशन के दौरान, समाजीकरण के दौरान जो बच्चे हैं वो अपने जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे ये पहचानना शुरू करते हैं कि मेल और फीमेल क्या है। नॉट जस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि सोसाइटी में मे बी मम्मा है या मदर है, तो उनसे क्या अपेक्षाएं रखी जा रही हैं। क्या वो सिर्फ खाना वही बना रही हैं, खाना बनाने की जिम्मेदारी खाली उनकी है, जो और हमारी फैमिली में लोग हैं उनका बिहेवियर उनके प्रति कैसा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस उनके लिए कैसे हैं, क्या चाइल्ड केयर और बच्चों की देखभाल सिर्फ वही कर रही हैं। तो पापा मम्मी के द्वारा वो जो जेंडर रोल्स हैं उनको वो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो लड़की के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है, बीइंग अ गर्ल शी ऑब्जर्व्स मदर, अदर लेडीज जिनको भी वो ऑब्जर्व करती है अपने आसपास, देखते हैं। तो इस तरह से जो सोशलाइजेशन है उससे धीरे धीरे आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन का भी जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, और जो बच्चा है वो अपने को मेल या फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। तो स्टिल हमारी ये जो सोसाइटी है या कल्चर है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग refers to the practice of ascribing to individual women or men specific attributes, characteristics, or roles by reason only of her or his membership in the social group of
women or men. Gender stereotyping is wrongful when it results in a violation or violations of human rights and fundamental freedoms. Gender stereotypes are generalizations about the characteristics of an entire group based on gender. तो स्टीरियोटाइप जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ के लिए बड़े एडमेंट हो जाते हैं कि ये क्वालिटी जो है वो विमेन की है, या ये जो क्वालिटी है वो मेन की है, आदमी ऐसे होते हैं, औरत ऐसी होती है, और ये जो कार्य है ये सिर्फ औरत करेगी, या ये जो कार्य है सिर्फ आदमी कर सकता है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट भले हमें अभी लगे कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे आसपास की सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमें समाज में मिलती है, और इसी को हमें खत्म करना है, इस विचारधारा को चेंज करना है और स्टीरियोटाइपिंग से लड़ना है, जो विमेन स्टडीज में भी हम बार बार डिस्कस करेंगे। जेंडर रोल्स अभी हमने डिस्कस ही किया था, कंसिस्ट ऑफ द सोशल एक्सपेक्टेशंस अबाउट द टिपिकल एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ मेन एंड वुमेन। जो हमारा समाज है उसकी जो अपेक्षाएं हैं, वो जो एक्सपेक्ट करता है एक औरत से या आदमी से कि उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, वो जेंडर रोल्स कहलाते हैं। तो generally female the gender role includes the expectation that women and girls exhibit communal traits and behavior which focus on interpersonal skills, expressivity and emotional sensitivity. ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा डिस्कस किया था। आप सबसे मैंने पूछा कि आप ही के एज ग्रुप की किसी भी स्टूडेंट को हम ले लेते हैं, फीमेल स्टूडेंट को, और दूसरे डिपार्टमेंट जो भी हमारा गर्ल डिपार्टमेंट है, सेम एज ग्रुप के हम एक बॉय को बुला लेते हैं, और दोनों की अगर हम टसल कराएं, फाइट कराएं, फिजिकल में भी बॉक्सिंग करा लें या कुछ करा लें, तो कौन जीतेगा? तो आप सब ने एक तरफ से बोला था मैम वो लड़का जीत जाएगा, क्योंकि एक परसेप्शन है हमारा कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां वीक होती हैं। पर फिर मैंने आपसे एक सवाल किया कि आसपास जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मान लीजिए कोई यंग लड़की है 18-19 साल की जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, उसे हम बुलाते हैं और उसकी फाइट हम फिर करा देते हैं, तो कौन जीतेगा? तो आप सब कंफ्यूज्ड हो गए थे, श्योरिटी से नहीं बोल पाए। Why? Because that girl is maybe carrying a lot of बोरियां उठा रही है, बहुत सारा फिजिकल लेबर कर रही है, और उसके अंदर कोई हिचक नहीं है, वो बहुत अच्छे से लड़ेगी। तो हम कंफ्यूज हो गए कि हम कह नहीं सकते, हो सकता है वो भी जीत जाए। तो यहाँ लड़का लड़की वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं आया। तो जेंडर रोल्स जो हैं वो सोसाइटी हमारे ऊपर थोपती है, हमें देती है, समाजीकरण के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा। एक्चुअली में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो परसेप्शन है, जो बहुत अर्ली एक्सपीरियंसेस से हमारे अंदर आ जाता है, वो इसका कारण होता है। तो these are known as gender roles. Gender labeling, characteristics as male or female. Gender labeling implies that characteristics are polarized between male and female genders, meaning that the emergence of a certain characteristic is defined by the gender of an individual. जो हमने डिस्कस किया, जब हम लेबल कर देते हैं, टैग कर देते हैं कि this thing is male and this thing is female, then we call it as gender labeling. Gender discrimination. Gender discrimination refers to the practice of granting or denying rights or privileges to the person based on their gender. Discrimination based on gender is a common civil right violation that takes place in many forms, including sexual harassment, pregnancy discrimination, and unequal pay of women who do the same job as men. तो इसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं काफ़ी डिटेल में आपके साथ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें बहुत सारे लेवल्स पे, बहुत सारे एरियाज में मिलता है। और ये इसका मतलब ये है कि जब हम दो व्यक्तियों में अंतर करें और उस अंतर का आधार जेंडर हो या सेक्स हो, तो उसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और आसपास अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं, इवन अर्बन एरियाज है, जहाँ पे लड़कों की एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है लड़कियों के कंपैरिजन में। और ये विचारधारा रहती है कि लड़की तो बाहर चली जाएगी, मे भी शादी हो जाएगी, तो उसको पढ़ाने का, उसके ऊपर मेहनत करने का हमें कोई खास फर्क बहुत बेनिफिट मिलना नहीं है, तो इसलिए हमें लड़के को पढ़ाना चाहिए। या फीमेल फेटिसाइड्स के कितने सारे केस हैं जो शर्मनाक भी है, कि जब हम लड़की को वूम में ही मार देते हैं ये जानकर कि लड़की है। तो ये जो है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन के बहुत अच्छे क्या प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। सेम कार्य के लिए, सेम काम के लिए हम देखते हैं विमेन और मेन में डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमने डिस्कस भी किया था, इवन
लेबर्स जब हम हायर करते हैं तो कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर वो आदमी है तो उसका जो डे का मेहनताना है वो ज़्यादा होगा, और सिर्फ अगर वो औरत है ये यही क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है कि उसको हम कम पे करेंगे क्योंकि हम सोचते हैं वो कम काम करेगी. तो दैट इज व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन.